subject दिव्य गुण दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाना कि आप ब्राह्मणों के ये गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है तब समय परमाणु उस गुण को कार्य में कर्म में लगाते हैं। अगर स्मृति कोई समय कम रखते हो रिजल्ट क्या होती है? समय पर कोई यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है कि ये करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया। फिर सोचते हो कि आगे ऐसे नहीं करेंगे। दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। कभी कभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो। कोई चीज व कोई बात वैसे स्मृति में रहती है लेकिन समय पर भूल जाते हो। उस समय क्या हालत होती है? क्या होती है? चीज चाहिए और है भी लेकिन समय पर याद नहीं है तो क्या होता है उस समय? घबराते हैं ना हाथ पाँव। ऐसे ये भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहेगा। समझाना सभी ने समझा imbibe
such a personality of Brahmin life that your energy, time, and thoughts are all used in a worthwhile way. Nothing should be wasted. Do not engage your mind or intellect in trivial matters whilst hearing impure things. Do not listen to them. See, but do not see. Just as when you are walking along a street and you don't notice anything that has nothing to do with you, or you just walk along whilst continuing to consider everything to be a side scene, so too, neither listen to nor see anything you hear or see that has nothing to do with you. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day second. Shiv Bhagwan Vacha. God Shiva's versions. Ajanma. Beyond birth and death. Now we will listen to Moini Didi. Om Shanti, everyone. Everyone is well, okay? Yes, very good. Nice to see everyone saying yes, no? Feels so good. Our Vyakti Parivar, Baba keeps us very well. We are all very happy, very full. You had been getting these points from letter from Madhuban, and I use them before listening and practicing also is that how the confluence age, time and energy, and thought is very valuable. And every moment there are sight scenes, and I should only listen, see what is useful for me and what is not useful. Because if I see, I hear, then I have to change it. So it is a lot of effort. And there will always be scenes of drama, right? And we all have to pass with honor by seeing that my thoughts, my intellect, my time, my energy doesn't go towards that. Right? So we want to connect with Baba. We have taken these points so that we have clear introduction of Baba. Not only clear, but full introduction, accurate introduction. So that whenever I want to connect with Baba, I'm connecting with that total introduction. Like Brahma Baba's remembrance was very, very powerful.
His awareness had power, and his awareness was also becoming consistent. And that's what the final stage is, that when you are embodiment of awareness, your all attachments finish. It could be attachment, karmic bondage, or I don't know, whatever it is, the sanskars, that every moment there are certain things which happen. Drama doesn't stop. Am I seeing पल it पल ड्रामा में as Baba said, हम you सीन देखते हैं, हमारे कर्मों का अकाउंट है, हम अपने world benefactor point of light. So बाबा what Baba is ज्योतिर्बिंदु है, factor विश्व point of कल्याणकारी है, beyond और birth and death. Got the third one और today. We अजन्मा keep है. adding it. हम रोज एक एक पॉइंट ऐड करते हैं, You have full और इन 30 introduction दिनों of में आपको पूरा पूरा बाबा का परिचय मिलेगा. the soul enters in the womb of the mother and आत्मा that is birth. And when the soul गर्भ leaves में body, we call आती it है, death, right? फिर Birth, जन्म लेती है, yes, और call फिर the आत्मा जब cycle. शरीर छोड़ती है तो उसे मौत कहते हैं. तो ये जन्म और मरण का चक्कर Cycle. चलता We रहता है. know इसे Baba क्यों हम explained us जन्म मरण का चक्कर birth कहते हैं? cycle. बाबा ने हमें समझाया है कि 84 जन्म है इस So पूरे start at confluence साइकिल में. age. तो अगर हम इस संगम युग पर शुरुआत करते हैं, Mouth progeny, mouth born, संगम युग पर pure हम birth. ब्रह्मा मुख वंशावली है. हमारा जन्म पवित्र है. शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा बोलते हैं और हम ज्ञान सुनते हैं. I understand now that I am a soul. और अब This मैं is my- समझती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है. And recently Baba mentioned that हाल ही whole में new बाबा ने बताया कि and godly सारे नए अलौकिक और दुनिया मेरे लिए शुरू होती है, मेरे लिए और relationships and मेरे संबंधों में भी. everything changes. सब कुछ इस जीवन में बदलता है. ये जैसे कि नया जीवन है So हमारा. important to remember तो ये महत्वपूर्ण बात है याद रखने की godly कि birth, मैं spiritual birth, ये मेरा ईश्वरीय जन्म है, रूहानी जन्म है, inheritance from Baba. और बाबा से हमें वर्षा मिलता है. At confluence age, lot has to be और done. संगम युग पर बहुत सारा हमें कार्य करना है. कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है, और 21 जन्मों के लिए हमें जमा का खाता बढ़ाना है इस जन्म के लिए, और कुल मिला के 21 जन्मों के लिए हमें हिसाब किताब चुकतू करना है. क्योंकि हमें और याद दिलाना कि कैसे मुझे चुकतू करना है. एक है चुकतू करना है, दूसरा है याद करना, दूसरा है ज्ञान को यूज करना, गुणों को यूज करना. And creating is also divine sanskars in me. और दिव्य गुणों को भी Many old की रचना sanskars. करना. हमारे बहुत सारे पुराने संस्कार हैं जिनमें हमें बहुत सारी आदतें हैं जो हम अपने अपने तरीके से सोचते हैं. इसके लिए बाबा कहते हैं परिवर्तन लाना है, क्योंकि हर पल कुछ न कुछ इमर्ज होता है. कभी कभी जो पुराना है तो वो मुझे चुकतू करना है, What I और want to create. उसी समय स्वयं को याद दिलाएं कि मैं कौन हूँ. इसके लिए बाबा Lovely. कहते हैं कि न्यारा और प्यारा रहना. And lovely न्यारा while यानी कि creating, right? आप उस समय चुकतू कर रहे हैं, और प्यारा यानी कि आप रचना कर रहे हैं. Feelings of love जब मैं and अपनी creating. भावनाएं प्रेम की बताता हूँ, स्नेह की बताता हूँ, मैं स्वर्णिम युग के संस्कार बना रहा हूँ. This morning I had और think चुकतू करते समय न्यारा रहना है. and lovely आज मैं सोच रही थी कि न्यारा यानी कि चुकतू करना, और प्यारा यानी कि रचना करना. और संगम युग पर ये मेरा जन्म है, ये मेरा जन्म है 21 जन्मों में से. तो ये है जीवन मुक्ति का जीवन. is liberating. जीवन मुक्ति का जन्म, Like जीवन मुक्ति यानी कि मुक्त रहना. guide. और बाबा की मुझे ये दो विशेषताएं पसंद है कि एक है गाइड है, और वो हमें मुक्ति भी दिलाते हैं. वो हमें कहाँ जाने की गाइड करते हैं. बाबा
हमारा मुक्ति दाता है, हमें दुख से मुक्ति दिलाते हैं और सुख का दाता है, हमें गाइडेंस दे रहे हैं शांति धाम की तरफ चलने के लिए। These elevated actions which we do, तो इन श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर जो हम करते हैं, हम अपने पुराने हिसाब किताब चुकता करते हैं इसके आधार पर। तो हमारा नया जन्म जो स्वर्णिम युग में होता है, जो है begins. जो हमारा जीवन है, मुक्ति We have का enough जीवन है, of what we have accumulated. और जो भी हमने जमा किया है When copper age begins, then वो हमें our मिलता है सत्युग में। और फिर जब because of the body consciousness, द्वापर युग शुरू होता है तो देहभान आ जाता है, और फिर देहभान से दूसरे अवगुण भी आने लगते हैं, फिर बंधन शुरू हो जाते हैं, हम जीवन बंध में आ जाते हैं। तो जीवन बंधनों से भरा हुआ रहता है। तो ये जैसे कि हमारा पुनर्जन्म है, और ये जो साइकिल है कि हम जीवन बंध से जीवन मुक्ति की तरफ चल रहे हैं, फिर अब हम संगम युग पर हैं। तो हम शिव जयंती, शिवरात्रि मनाते हैं। बाबा का आना इस विश्व में बहुत ही विचित्र है। कोई और आत्मा परम धाम से आना जाना नहीं कर सकती है। एक बार कोई और आत्मा आती है तो पूरा चक्र खत्म करके फिर घर जाती है, और फिर घर जाकर फिर नीचे आती है। लेकिन शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा मुख यूज करते हैं, ब्रह्मा की आंखें यूज करते हैं, दृष्टि देते हैं, मुख द्वारा ज्ञान देते हैं, लेकिन ब्रह्मा के शरीर में हर समय नहीं रहते। इसके लिए बाबा कहते हैं, मैं कितना दूर से आता हूँ, और फिर वो अपना पार्ट बजाते हैं। तो ये बहुत ही अलग तरीका है, विचित्र तरीका है। हम अवतार कहते हैं इसे, और दिव्य जन्म कहते हैं, और हमें ये समझना है। हम शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन वो हमारे जैसे नहीं जन्म लेते हैं, क्योंकि वो अजन्मा है, इस जन्म मरण से परे हैं। उनका तरीका जो है, आज सवेरे में बाबा ने मुरली कहा, कोई भी शरीर का लोन नहीं लेता है, लेकिन शिव बाबा शरीर का, ब्रह्मा बाबा के शरीर का लोन लेते हैं। बहुत ही दिलचस्प बात है ये। जब मैं देखती हूँ दोनों को थोड़ी सी इस भ्रुकुटी के मध्य में रहते हैं, और आपस में कोई अनबन नहीं, वो सचमुच में साथ में रहते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कितना शिव बाबा के साथ रहकर उनको फॉलो किया, बाबा की मत पर चले। लेकिन वो बहुत अच्छे से करते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि वो कैसे करें ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन शिव बाबा की श्रीमत पर चले, श्रीमत पर चले। अपने जीवन में भी मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं फर्मा बरदार हूँ, मैंने भी सब कुछ माना, लेकिन उसी समय तो नहीं। बाबा कहते हैं करो, लेकिन हमारे में शक्ति नहीं है तो नहीं करते। श्रीमत पसंद है, प्यार भी है बाबा से। मेरे में तो कमी थी क्षमता की, तो मैंने जैसे कि नहीं कर पाई उसी समय, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मुझे करना है। और फिर जब शक्ति आती है तो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के आप संबंध को देखेंगे तो सूक्ष्म देवताएं जो हैं सूक्ष्म वतन में, उनका बहुत ही अलग तरीका है। उनका जो स्वरूप है वो निराकारी से सूक्ष्म वतन में वो ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हें सूक्ष्म वतन के देवताएं कहते हैं। तो वो भी एक तरीका है पाठ बजाने का। और दूसरा है जो धर्म स्थापक आत्माएं हैं, उनका भी अलग रोल है। वो कैसे पाठ बजाते हैं साथ में। तो जो संदेशी है
वो ऊपर से आते हैं और दूसरे के शरीर में both of प्रवेश them करते हैं are और different. फिर दोनों पार्ट बजाते हैं अलग तरीके से। One whose body was used जिसका शरीर यूज किया गया था वो उसको पवित्र बनाया गया, every prophet souls और हर they have to do lot of जो sacrifice. धर्म स्थापक है उन्होंने बहुत सारा त्याग We किया। know about Christ, lot of people हम know जानते हैं क्राइस्ट के बारे में, उनको when we start talking about क्रॉस पे commandments डाला गया था और उन्होंने of God and कमांडमेंट्स के बारे में बताया था the और established religions were not उन्होंने धर्म स्थापक किया और so he कभी दूसरों ने उस समय स्वीकार नहीं किया, फिर उनको सूली पे चढ़ाया गया in jungles and और उन्होंने कैसे पहले जंगल में भी so रहे। तो हर धर्म स्थापक को बहुत सारा someone asked त्याग that why करना पड़ता है। to go through that. किसी ने मुझसे पूछा कि क्यों उन्हें इन सब से So गुजरना there are पड़ता two है। things that soul तो had दो been चीजें there. हैं कि वो आत्मा Purification is required. जब होती है वहां पे तो पूरी तरह से पवित्र बनना है और वो अपना हिसाब किताब चुकतू करते हैं पूरी तरह से। When Christ comes, और फिर वही शरीर है जीसस का, जब a क्राइस्ट king आते हैं the head एक of the religion. So religious राजा बन जाता है और दूसरा धर्म स्थापक बन जाता है। तो golden age द्वापुर both में together, धर्म like Sri और Krishna and इंद्र Narayan. को अलग They माना have गया था। kingdom and श्री also कृष्ण और religious नारायण जैसे, authority. तो वो They don't उनको have राज्य भी है divided और power, religious धर्म भी साथ साथ चलता है। तो अलग अलग नहीं है धर्म और राज्य, लेकिन द्वापुर से वो सब अलग हो जाता है। going in जब details, ये but मैं that's डिटेल में नहीं जाऊंगी, तो वो दूसरा तरीका है, वो अपना पार्ट बजाते हैं। so these are different ways where तो ये अलग अलग connected with drama. तरीकों से हम ड्रामा के साथ जुड़े हुए हैं। शिव बाबा जब Taking this आते हैं spiritual birth, और हम ये रूहानी जन्म लेते हैं, soul entering body, फिर जो part and then leaving. रेगुलर आत्मा है जो गर्भ में प्रवेश करती है, अपना पाठ बजाती है, Understanding everything. तो सब कुछ समझने से। So when I am looking at Baba, तो जब मैं बाबा one को of his देखती हूँ, ever, उनकी जो विशेषता है we कि say Sadashiv. सदाशिव, Only one soul could be एक ever. ही आत्मा है जो सदा रह सकती है। Could be ocean all the time. एक ही आत्मा है जो सागर है हर समय, That क्योंकि वो जन्म मरण से परे है, अजन्मा है। total liberation we call it moksha. बहुत सारे कहते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, पूरी तरह से हमें मुक्ति चाहिए, मुझे इस जन्म मरण के साइकिल में नहीं आना है, मैं इतनी श्रेष्ठ बन रही हूँ, अभी फिर से तमो प्रधान बनूंगी, ये बहुत ज्यादा है, तो मुझे पूरी तरह से मुक्ति चाहिए। Has to बाबा play part. कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, आत्मा को तो पाठ बजाना ही है, चाहे 1-2 जन्म हो या 84 जन्म हो। Accepted because that's how it तो is. हमने ये स्वीकार किया क्योंकि ये ऐसा ही है। लेकिन फिर बाबा हमें लक्ष्य देते हैं, जीवन मुक्ति और मुक्ति का लक्ष्य देते हैं, तो आप वो Ever उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो बाबा ocean because निरंतर है, सदा है, सागर है, क्योंकि he doesn't come in the cycle of birth and death. वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, अजन्मा है। To 16 हमारे celestial लिए 100% हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, 100% पवित्र बनते हैं, लेकिन हम देह अभिमान में आते हैं और बदलाव तो नेचर में आता ही है, प्रकृति में आता ही है। कुछ भी है तो लॉ ऑफ एंट्रोपी जो होता है, जो भी नया है वो पुराना होता ही है। पेड़ भी जो है, पौधा भी है, सबका अपना सीजन है, चक्र है, accept those seasons, right? और हम सारे सीजन्स को भी स्वीकार करते हैं। Baba, because he is beyond तो birth and death. बाबा then क्योंकि जन्म मरण से परे हैं, अजन्मा है, तो बाबा को ये प्रकृति के भी जो नियम है बाबा पर लागू नहीं होते हैं, इन सब से परे हैं। one time Baba was saying, according एक to बार drama, बाबा ने there कहा, has to be one ड्रामा soul के हिसाब से who has to be एक beyond, and then we call it आत्मा super होनी soul. चाहिए जो इन सब से परे होनी चाहिए, उसे हम परमात्मा कहते हैं। It's my part, right? बाबा कहते हैं यही मेरा पाठ है। Baba says that कभी कभी बाबा कहते हैं
Children have their own बच्चे part to play. I have my own बच्चों part. को अपना पार्ट बजाना है, मुझे अपना पार्ट बजाना है। It's little deep, subtle, but ये थोड़ी गहराई वाली बात है, सूक्ष्म भी है, understand. लेकिन हम पहले स्वीकार करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। Look at God, we look at फिर जब Baba. हम भगवान को देखते हैं तो बाबा को देखते हैं। Our thought is Baba, तो हमारा world संकल्प है कि benefactor, you are point बाबा of light and विश्व you are कल्याणकारी है, beyond the cycle ज्योतिर्बिंदु है of और birth and death. अजन्मा है, इस जन्म मरण के चक्कर से परे है। But that also Baba gives us that privilege to. वो भी बाबा हमें Confluence stage for वो Brahmins. प्रिविलेज देते हैं। say, संगम युग पर इस ब्राह्मण पे हम ये नहीं कहते कि ये मर गया, So and so left हम body. हमेशा कहते हैं कि इस आत्मा ने शरीर छोड़ा, Because I am immortal, so I don't die. क्योंकि Right? मैं अमर हूं, तो मैं आत्मा मरती नहीं है, सिर्फ शरीर Another छोड़ती body. है आत्मा और दूसरा शरीर लेती है। इतना गहराई से हमें I am ये immortal. अभ्यास करना है, आत्मा के अंदर जैसे कि छप जाना चाहिए कि मैं अमर हूं। So that even when I am leaving, like Brahma Baba तो left, जब मैं of course, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो संगम युग पर हम ब्रह्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, यानी कि दुख नहीं होना चाहिए, there shouldn't be fear. डर There नहीं should, होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। yes, we have to take care of body, हमें शरीर की देखभाल करनी है, but also remain fearless, saying लेकिन निडर भी रहना है। that time is fixed for इसके लिए life कहते also. हैं कि जाने का समय भी सबका फिक्स है। Yes, with power of yoga, योग as की much शक्ति से to take service through the body. जितना शरीर से बाबा सेवा कराना चाहते हैं करेंगे, तो बाबा की पालना में हम पल रहे। Standing help us to accept, ये to be समझ हमें मदद मिलती है स्वीकार करने की, स्थिर रहने की, और हम that lightness, that awareness. वो स्मृति बनाए रखते हैं। Really remind myself लाइटनेस रह सकती है, जैसे बाबा ने आज कहा and treasure कि सबसे of life महत्वपूर्ण is happiness. ब्राह्मण जीवन का खजाना है खुशी। To keep ourselves happy and स्वयं को make खुश रखें also happी. That's also और दूसरों को भी खुश very रखें, important. वो भी बहुत जरूरी है। Share that how this मैंने morning कैसे look शेयर at किया कि आज जैसे मैंने बाबा को देखा कि ज्योतिर्बिंदु है, मैंने देखा कि मुस्कुरा रहे हैं बाबा, because he wants us also to और क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हम भी आत्मिक स्थिति में रहें और बाबा को याद रखें कि ज्योतिर्बिंदु है। he interacts, he smiles. बाबा हमसे बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं, इशारे देते हैं हमें। तो कल अमृत वेला हम बाबा को देखेंगे, विश्व कल्याणकारी ज्योतिर्बिंदु और जो अजन्मा है। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. Welcome to ओम शांति। Mama's आप Murli. सबका The स्वागत है lucky and lovely अव्यक्ति stars यात्रा में। लकी और लवली सितारा जिन्होंने सुना, मनन चिंतन किया और दूसरों को भी धारणा भी की और दूसरों को प्रेरणा भी दी। खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में, पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में, जाने क्या थी खूबियाँ। ओम शांति की याद में बैठे हो। हाँ, जिसके याद में बैठे हो उसको जानते हो ना, ऐसे नहीं अंधविश्वास में।
बस ऐसे ही याद करें, नहीं, जान करके, समझ कर करके, ज्ञान सहित। इसीलिए गीता में भी है कि मुझे मेरे अर्थ स्वरूप से जो मुझे याद रखते हैं उसको यथार्थ रीति से मेरी प्राप्ति होती है। कहा है मुझे यथार्थ रीत से मेरे अर्थ स्वरूप में, कहा है ओम के अर्थ स्वरूप में। तो ओम उसका अर्थ स्वरूप, तो अर्थ बुद्धि में है। तो ओम, आई एम दैट व्हाट, सोल, परंतु प्योर सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल। तो ये बुद्धि में है। तो आई एम फर्स्ट प्योर, अभी इम्प्योर हुए हैं, तो अभी इम्प्योरिटी से निकल करके प्योर सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल बनना है। तो प्योर बनना है तब सन ऑफ सुप्रीम सोल ही है। तो ये अर्थ बुद्धि में रखना है कि हम उसकी संतान, तो प्योर, और प्योर ही उसकी संतान कहलाने का अधिकार है। तो उसकी संतान प्योर होनी चाहिए और प्योर ही उसकी संतान हो सकती है। तो ये अपने बुद्धि में रखने का है। तो ये अर्थ है, उसी अर्थ सहित उसे याद रखना है। इसको कहा जाता है ज्ञान सहित। ऐसे नहीं बस ऐसे ही, कैसे भी, किस भी रूप से नहीं। वो भी जो जैसा है, हम भी जो जैसे हैं। तो हम कैसे हैं? फर्स्ट प्योर। इसीलिए हम भी जो जैसे हैं वैसे अपने को भी समझना है, और वो भी जो जैसा है कि हम उसके बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं, उससे हमें प्राप्त करना है, उसको भी ऐसा ही समझ कर करके याद रखने का है। इसको कहा जाता है ज्ञान सहित, अर्थ सहित। तो अभी अर्थ तो बुद्धि में है ना, तो है। इसी को फिर गीता में भी कहा है कि मुझे यथार्थ रीत से मेरे अर्थ स्वरूप को समझ कर करके मुझे जो याद करते हैं उसको मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा होती है। क्योंकि मेरी प्राप्ति मेरे द्वारा, मैं ही आकर के अपना अर्थ, अपना नॉलेज यथार्थ समझाता हूँ। क्योंकि मेरे अर्थ को या मेरे नॉलेज को, मेरे परिचय को और कोई नहीं समझाएगा। इसलिए मेरा परिचय मैं देता हूँ, इसलिए क्या मेरे द्वारा। और कहा भी डायरेक्ट है, नहीं देखो कहा है माम एकम, मुझे याद करो। तो ये किसने कहा? परमात्मा ने स्वयं कहा। तो अपनी याद के लिए भी उसने बैठ कर करके अपने साथ ही याद कराना सिखाया है, कोई दूसरे ने नहीं है। दूसरा कहेगा तो कहेगा उसको याद करो, नहीं। तो परमात्मा ने तो अपने साथ ही योग खुद सिखाया है। तो उसकी माना उसके सिखाने के लिए उनके पास ही नॉलेज है, मनुष्य नहीं सिखाता। जो उसको कहने वाले हैं ना, वो यथार्थ परिचय नहीं है। इसीलिए बाप कहते हैं कि मेरा परिचय मैं देता हूँ और मैं खुद आकर के कहता हूँ माम एकम, मुझे एक को। माम मतलब ही है मुझे, तो एकम मुझे एक को याद करो। तो मुझे कहने वाला तो वो अथॉरिटी स्वयं है ना। मनुष्य तो ही कहेगा मुझे एक को याद करो, हाँ, वो ऐसा नहीं कह सकता है। तो हमको याद सिखलाने वाला वही खुद चाहिए जिसको याद करना है। तो जिसको करना है वही सिखाने वाला चाहिए। ऐसे नहीं करना उसको है, सिखाने वाले दूसरे हो, नहीं, वही। तो अभी उनके द्वारा हम सीख रहे हैं। वो कह रहा है कि बच्चे मुझे याद करो, और बैठ कर करके बच्चों को समझा रहे हैं कि किस तरह से तो मेरी संतान हो, संतान कितनी ऊंची थी, अब क्या हो गए हो। अब फिर आया हुआ हूँ, हाँ, जब तुम बच्चे दुखी होते हो, अशांत होते हो और दुखी होकर के हाँ पुकारते हो, तो फिर आता हूँ। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करें हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का,
सुनते हैं। मैं स्वागत करती हूँ हमारी फरिश्ता बहन शिरीन बहन को स्वागत करते हैं। ओम शांति आप सभी को। दीदी गुड इवनिंग दीदी। आज की क्लास बहुत ही दिलचस्प थी, बहुत ही यूनिक पॉइंट्स थी दीदी ने शेयर की जो मैंने नहीं सुनी है पहले। One was this idea एक that थी जो we are settling, we do it जब with हम attachment, and when we जो भी हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं वो न्यारा बनकर कर रहे हैं, और जब भी हम रचना कर रहे हैं वो प्यार से, वो and बहुत ही the अच्छी thing पॉइंट they थी। said was most और जो fascinating was दीदी about ने जो शेयर किया पॉइंट messenger souls, जो so मुझे पसंद Dharmatma, आई है वो है the धर्मात्मा, जो and मैसेंजर आत्माएं हैं। there were two things that Didi shared that was very interesting. दीदी ने Was दो शेयर की चीजें, एक है when Christ soul enters कि जब Jesus, क्राइस्ट की आत्मा जीसस में आती है that enters तो the two souls मैसेंजर and की the जो one आत्मा है that वो दो is आत्माएं हैं, already in the body. The एक जो so शरीर में है soul also has to go through a lot of तो purification. For उस example, उस Jesus आत्मा had को to भी be बहुत सारे offered up on a पवित्रता, cross and things तो like that. जैसे जीसस को भी सूली पे चढ़ाया गया। Was और that दूसरी one of the souls दिलचस्प बात थी कि एक आत्मा राजा soul बनती है of a और religion. दूसरी धर्म स्थापक बनती है। Very nice. तो And बहुत ही अच्छी पॉइंट थी। so the other interesting thing was और where दूसरी दिलचस्प बात है जहाँ दीदी बता रही थी Baba is the only one that is बाबा Janma ही or beyond the cycle अजन्मा है, एक वही एक आत्मा है जो अजन्मा है, consistently जन्म मरण के pure, चक्कर से परे है, और वो consistently Sadashiv पवित्र है, or सदाशिव है, consistently pure, पवित्र and he's है, the only निरंतर पवित्र है। consistent, और वही एक आत्मा है जो निरंतर है, really सदा है, important characteristic क्योंकि of Baba बाबा is की he विशेषता यह है कि वो cycle इस of birth and death, but also he जन्म मरण से चक्कर से परे और इस and साइकिल से भी ऊपर है। one is this thing that at the confluence age इस संगम युग पर this privilege बाबा हमें ये प्रिविलेज देते हैं that we died, but कि हम anyone who leaves the confluence age is really they have passed on, जब is they left the body. तो जब हम शरीर हम कौन संगम युग पर कहते हैं कि हमने शरीर छोड़ दिया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, Being immortal is तो that we ये should deep समझने की बात है कि मैं अमर हूँ, आत्मा हूँ, अमर हूँ, और आत्मा के अंदर ये छप जाना चाहिए कि मैं अमर हूँ, आत्मा हूँ। for that और very ये fascinating दिलचस्प बात है। वो बहुत ही अच्छी क्लास थी आज की। homework for tomorrow. तो कल का होमवर्क हम देखते हैं हम A Janma beyond birth अजन्मा, and death. You souls come जन्म और down मरण here से परे तुम आत्मा आती हो, आकर I गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़े ही जाता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ। इसको known as दिव्य a जन्म divine कहा जाता है। Om Shanti. Let's do the ओम meditation. शांति। अब हम योग करते हैं। Ajanma, beyond birth and death. अजन्मा, जन्म और मरण से परे। You souls come down here and enter a womb. तुम आत्मा आती हो, I have आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। whole body मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ। I do not enter a womb. मैं कोई गर्भ में थोड़े ही जाता हूँ, Incarnate. मैं तो प्रवेश This करता हूँ। is known as a divine इसको birth. दिव्य जन्म कहा जाता है।
शिव भगवान उवाच अजन्मा तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ। मैं कोई गर्भ में थोड़ी ही जाता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ। इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति।